Good morning, student. Good morning, sir. Good Good morning, sir. morning, Good morning, sir. 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 Anyone have any idea about the last lecture on Saturday? सैटरडे क्या किया था लेक्चर में? एनीबडी? Position and exponential distribution. Very good. Okay, in last lecture on Saturday, we discussed the Poisson distribution, that is the limiting case of the binomial distribution, and then we also discussed about the probability density function, and last we discuss about the exponential distribution. Okay, so we discussed that. You can see on your screen, we quickly go through it. So here, yes, in last lecture we have discussed Poisson distribution, how it is defined, then we do some examples for that, then we go for the probability density function, then we also do some examples for the probability density function, and at last we discuss the exponential distribution function. And today we are going to discuss about the I am going to discuss about the normal distribution, that is the fourth distribution of the our unit. Okay, so today I discuss about the normal distribution. Okay, so you can see on your screen, is it visible to all, everybody? Is it visible? Yes, sir. Okay, so Yes, sir. yes, thank you. Normal distribution. So normal distribution is very useful and very important topic for the statistics. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो the most important continuous probability distribution means continuous data है, तो ये very useful distribution है in the entire field of statistics is the normal distribution. Okay, its graph, जो उसका graph है, it is called the normal curve. इज दी बेल शेप, मीन्स उसका जो है वो बेल शेप, बेल जैसे होता है ना, इससे बेल शेप में है वो, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ग्राफ और नॉर्मल कर्व विच अप्रोक्सीमेटली डिस्क्राइब मेनी फेनोमेना दैट अकर्स इन नेचर, इंडस्ट्री एंड रिसर्च. ओके, तो दिस इज द very important form for the normal distribution. Okay, and for example, physical measurements in areas such as meteorological experiments, rainfall studies, the measurements of manufactured parts are often more than adequately explained with a normal distribution. मीन्स normal distributions की हेल्प से आप ये बहुत सारे टॉपिक आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हो. इन एडिशन एरर को भी आप अप्रोक्सीमेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हो. दैट मीन्स इन एडिशन एरर्स इन साइंटिफिक मेजरमेंट्स आर एक्सट्रीमली well approximated by a normal distribution. So this is the importance of the normal distribution. So is there any doubt in this slide, anybody? Any doubt, student? No, sir. So जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया. ओके, नेक्स्ट जो कर्व अभी बोला ना उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, यस, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स मींस अगर आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल एक्स है तो उसी को अगर हम नॉर्मल में लेंगे तो उसको बोलेंगे नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन मींस उसके पास क्या होना चाहिए, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. देन वी कैन से दैट इट इज द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल. तो ये जो एक्स है यहाँ पे, दैट इज योर रैंडम वेरिएबल. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? normal random variable. Okay, got it? Yes, sir. Okay, next, the mathematical equation for the probability distribution of the normal variable depends on the two parameters. जो normal distribution है, normal distribution में two parameters बहुत ही important है, एक mean mu एंड दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा. ये दोनों के ऊपर ही पूरा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन होता है. मीन मींस एवरेज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमने बहुत फाइंड किया है, उसके लिए डिफरेंट मेथड से डिफरेंट फॉर्मूलाज है.
तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन मींस वो उससे कितना डिस्पर हुआ है, मींस मिड एवरेज से वो कितना वो स्प्रेड हुआ है, दैट इज डिफाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो hence we denote the values of density of x, मींस जैसे हम लिखते थे ना f of x, लिखते हैं ना फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो डेंसिटी फंक्शन होगा उसको इस हिसाब से लिखा जाता है कि नॉर्मल का n ऑफ x मींस किसका, तो x का, और किसके ऊपर डिपेंड है, तो म्यू एंड सिग्मा पे। सो n x म्यू एंड सिग्मा, दिस इज द सिंबल फॉर नॉर्मल density function. Okay, so the density of the normal random variable x with mean mu and variance sigma square is given by n of x mu sigma is equal to 1 upon sigma square root of 2 pi e raised to minus 1 by 2 x minus mu divided by sigma whole square and minus infinity less than x less than mu, मीन्स अगर आप x को ही mu बोलते हो तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, एंड सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, ऑलवेज सिग्मा इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है और स्टैंडर्ड डेविएशन वो सिग्मा है, इसे आपको लेना है। Okay, so this is the mathematical definition of the normal random variable x, sorry, normal distribution, normal density distribution with sigma and mu, and यहाँ पे पाई क्या होता है वो हम जानते हैं, यहाँ गलती से लिख दिया है 3.1415, that is the value of pi, and the value of e will be 2.71828, वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। एंड यहाँ पे वंस म्यू एंड सिग्मा आपके पास अगर है, देन यू कैन डिफाइन योर नॉर्मल कर्व एंड यू कैन कंप्लीटली डिटरमाइन योर स्टडी, और यू कैन analyze your study by using the normal curve and normal distribution. So is there any doubt in this slide, anybody? No sir. ये हमने एक्सपोनेंशियल के लिए भी किया था, लेकिन उससे थोड़ा ये डिफरेंट डिफाइन करके दिया है ना। सो दैट इज द केस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एनी प्रॉब्लम, एनीबडी प्लीज? Any problem? Please confirm yourself. No sir. No sir. No sir. तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कर्व आपको फाइंड करने के लिए तीन चीज चाहिए, क्या क्या? x चाहिए, म्यू चाहिए एंड सिग्मा चाहिए। मींस अगर आपके पास म्यू मीन्स क्या है कि जहां से वो एवरेज हो रहा है वो मैक्सिमम स्लोप कहाँ पे, मीन्स मैक्सिमम कहाँ पे वो, और यहाँ पे सिग्मा मीन्स वो आपको कहाँ तक स्प्रेड करना है, कहाँ आपको लेना है, दैट इज द सिग्मा, एंड एक्स मीन्स जिसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी या फिर जो भी आपको एनालिसिस करना है, दैट इज द वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो इसके लिए आपको तीन चीज चाहिए, म्यू सिग्मा एंड एक्स, वो होता है, देन यू कैन स्टार्ट योर एनालिसिस बाय यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दीज आर द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टीज आर वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई अवर स्टडी एंड एनालाइज अवर स्टडी। सो नंबर 1, normal curve is bell shaped symmetric curve about the coordinate x is equal to mu. The coordinate is maximum at x is equal to mu. ये सही है या रॉन्ग है? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 सबको पता चल गई? क्या बोल रहे हैं कि जो म्यू है, अगर आप पहले देखेंगे तो ये शेप जो है वो बेल शेप है, यस और नो? ये और म्यू के पास मैक्सिमम है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैक्सिमम, कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू म्यू, मींस ये जो कर्व है वो कहाँ मैक्सिमम है, यही पॉइंट पे मैक्सिमम है, और जो वो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो म्यू है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और दूसरा कि ये सिमेट्रिक कर्व है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, इज इट सिमेट्रिक, यस और नो? ये सिमेट्रिक है कि नहीं? यस Yes sir. Okay, thank you. Second number, the curve is symmetric about the y-axis. Means अगर आप इसको y-axis यहाँ पे ड्रॉ करते हो तो वो y-axis के अराउंड सिमेट्रिक है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि x-axis तो आपने नीचे लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन अगर वर्टिकल लाइन को मैं y बोल दूं तो दिस इज ऑल्सो द सिमेट्रिक अबाउट द y-axis, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। और यहाँ पे दिखा है, देखो, द मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड एट ओरिजिन, मींस यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मीन इक्वल टू मीडियन
इक्वल टू मोड। वो कहां पे पॉसिबल होगा? जब ओरिजिन मिलेगा तब। आपके पास ओरिजिन होगा, वहां पे आप मीन, मीडियन एंड मोड सेम है, ऐसी यहां पे सिचुएशन होगी। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? जल्दी से कंफर्मेशन दो प्लीज। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. The normal curve approaches the horizontal axis asymptotically as well proceed in either direction away from the mean. Means यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसकी जो टेल है वो क्या हो रहा है? Extended infinitely in both the directions. That means the curve is asymptotic to x-axis in both the direction. Means जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये टेल जो है ना, आपको यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे टच करेगा, नहीं, वो टच नहीं करेगा दोनों साइड पे, वो क्या चलता रहेगा। मीन्स ऐसी सिचुएशन होगी, देखो आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन होगी। मीन्स यहाँ डॉट 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 करके ऐसे दिख रहा है। मीन्स वो क्या होगा, ऐसे आपको लगेगा कि टच कर रहा है, लेकिन वो टच नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। और वो माइनस इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव के बीच में ऐसा आपको मिलेगा कि मीन्स जैसे वो माइनस इन्फिनिटिव की ओर जाएगा तब वो टच करेगा, और यहाँ पे इन्फिनिटिव की ओर जाएगा तब टच करेगा। दैट इज अवर प्रॉपर्टी नंबर 3। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Fourth one, the total area under the curve and above the horizontal axis is equal to 1. Okay, तो यहाँ पे जो कर्व है उसका अगर आप टोटल एरिया काउंट करेंगे ना, टोटल एरिया मीन्स किसके लिए? ये पूरा कर्व। यहाँ आप देखो, ये जो पूरा कर्व है उसका अगर आप एरिया निकालेंगे ना, तो एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल टू 1 होगा। ओके, एक एरिया इक्वल टू 1 होगा। Everybody understand first statement? Yes, sir. Okay. और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपको 1 ही देगा। दैट मींस इट गिव्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल x taking values between minus infinity to infinity. Then mathematically we can write down in this way: probability of minus infinity less than x less than infinity equal to integration minus infinity to infinity। और जो ये probability डेंसिटी फंक्शन जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, dx is equal to 1। मीन्स अगर उसका एरिया भी 1 होगा एंड प्रोबेबिलिटी भी उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 4। एनी डाउट इन प्रॉपर्टी नंबर 4? No, sir. Okay. No, sir. Fifth, the ordinate at x is equal to mu divides the area under the normal curve into two equal parts। तो मीन्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये mu है, वो ये दो पार्ट को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. और दोनों ही दोनों सेम ही होंगे या डिफरेंट होंगे? Same होंगे। सेम होंगे। तो यहाँ पे जो 1 था उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2। यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। यहाँ एरिया इसका 1/2 होगा, यहाँ भी एरिया 1/2 होगा। तो यहाँ अगर म्यू दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, देन यू कैन ऑल्सो राइट डाउन इन दिस वे माइनस इन्फिनिटी टू म्यू, और ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज dx इज इक्वल टू म्यू टू इन्फिनिटी, ये पूरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रांड वो एज इट इज dx इज इक्वल टू 1/2। मीन्स आधा जो है उसका भी 1/2 होगा और दूसरे साइड का है उसका भी 1/2 होगा। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 5 एवरीबॉडी? Yes, sir. उन्होंने क्या किया, ये जो इंटीग्रेशन है ना माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, उसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया, माइनस इन्फिनिटी टू म्यू एंड म्यू टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे म्यू से दो पार्ट हो रहे हैं इसलिए। तो इसका भी 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2 होगा, तब जाके आपका टोटल 1 मिलेगा। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। एनी डाउट इन प्रॉपर्टी नंबर 5? एनीबॉडी? No, sir. Okay, next number 6,
इन नंबर 6 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द कर्व हैज इट्स पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, मींस द पॉइंट एट विच कर्वेचर चेंजेस, मींस जहां से पॉइंट कर्वेचर, उसका जो कर्वेचर है वो चेंज होगा, वो पॉइंट है x इज इक्वल टू म्यू प्लस और माइनस सिग्मा, मींस x इज इक्वल टू जब म्यू प्लस सिग्मा होगा एंड x इज इक्वल टू जब म्यू माइनस सिग्मा होगा, तब वो कर्वेचर चेंज हो रहा है। मींस जो कर्व आपने देखा यहाँ पे देखो वही कर्व है, तो वो दो जगह पे वो कर्वेचर को चेंज करेगा। दैट मींस x इज इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा पे एंड दूसरा म्यू माइनस सिग्मा पे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी नंबर 6? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड प्रॉपर्टी नंबर 7। अब ये देखो, ये सारी प्रॉपर्टी में से आपको एमसीक्यू निकल सकते हैं, है ना, तो उस हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करना है। देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी लाइज इन अ नॉर्मल कर्व एज फॉलोज, मींस जो हमारा कर्व है उसमें प्रोबेबिलिटी इस हिसाब से वर्क करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं म्यू माइनस 1 सिग्मा मीन्स ये ले रहा हूं और ये मीन्स म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा ले रहा हूं, तो ये कर्व का जो भी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगा, जो भी एरिया मिलेगा, वो कितना परसेंटेज टोटल का देगा? 68% वो डिफाइन होगा। इतने जो ये पार्ट है उसमें सिर्फ 68% प्रोबेबिलिटी वहां पे डिफाइन करके दे सकते हो। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब थोड़ा इससे आगे जाए तो ये थोड़ा कर्व बढ़ गया है ना, आपका एरिया बढ़ गया, तो म्यू माइनस सिग्मा, यहाँ इंक चेंज कर देता हूं, यस देखो, म्यू माइनस 2 सिग्मा टू म्यू प्लस 2 सिग्मा, तो ये थोड़ा एरिया बढ़ गया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो ये जो टोटल है उसमें से आपको 95.5% आपको प्रोबेबिलिटी देगा वहां पे। ओके, डन? Yes, sir. अब इससे भी थोड़ा आगे जाएंगे और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मींस माइनस 3 सिग्मा टू प्लस 3 सिग्मा में अगर हम जाएंगे तो क्या करेगा, तो थोड़ा उसका एरिया बढ़ गया है कर्व का, तो उसी हिसाब से उसकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, और वो प्रोबेबिलिटी एक्यूरेटी हमको देता है 99.7%। तो 99.7%। तो ये टोटल तो हुआ नहीं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे टोटल हुआ नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे छूट रहा है, ओके यहाँ इंक दिखाई नहीं, यस यहाँ पे छूट रहा है थोड़ा और यहाँ भी थोड़ा छूट रहा है, तो वो इसी की वजह से यहाँ पे 0.30 जो है वो आपको नहीं दे रहा है, दिख रहा है, तब जाके होगा ना टोटल 100। यस और नो? Yes, sir. तो मीन्स जैसे जैसे आप बड़ा कर्व लेते जाएंगे, बड़ा एरिया लेते जाएंगे, देन यू विल गेट योर प्रोबेबिलिटी, उस हिसाब से आपकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती जाएगी। सो प्रॉपर्टी नंबर 7, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन प्रॉपर्टी नंबर 7? एनीबॉडी? No, sir. और यहाँ पे गलती हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक, 3 सिग्मा म्यू प्लस 3 सिग्मा है। ओके, यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंटरवल डिफाइन करना। इंटरवल डिफाइन करना कैसे, मैं आपको पहले समझा देता हूं, देन वी गो फॉर दी डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल ये मेरा कर्व है, नॉर्मल कर्व, ओके, यस ये मेरा कर्व, थोड़ा ये इसे हो गया, नहीं चलेगा, सेंटर में रखना चाहता हूँ इसीलिए, अगर आप इसे डिफाइन करें तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसे सेंटर में रखना चाहता था। ओके चलो, अब ये है, तो यहाँ पे इंटरवल, फॉर एग्जांपल मुझे इतना फाइंड करने के लिए बोला गया है, ये जो रीजन है उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर आई कैन ट्रांसफर दिस इंटरवल इनटू द पॉजिटिव साइड, यस और नो? पॉजिटिव साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यस, ओके, दैट इज द फर्स्ट। एंड सेकंड, मैं यहीं पे रह के उसका प्रोबेबिलिटी निकाल, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हमारे पास हो जाती है, मींस उसको आप पॉजिटिव साइड ले जाओ और उसके बाद कैलकुलेट करो, या फिर नेगेटिव साइड ही रहने दो और फिर उसका कैलकुलेट करो, लेकिन ये करना है तो हमको क्या,
इंटरवल के ऊपर पूरा डिपेंडेंस आ जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये इंटरवल को आप कैसे चेंज करेंगे, दैट इज अवर डिस्कशन हियर। ओके, इंटरवल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आपके स्टडी के लिए आप डिसाइड करेंगे, दैट इज अवर डिस्कशन, नेक्स्ट डिस्कशन। तो यहाँ पे देखो, लेट x बी ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइंग इन द इंटरवल x1 टू x2, मींस अगर मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ये x1 है, ये मेरा यहाँ पे x2 ले रहा हूँ, तो x1 टू x2 के बीच में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन x लेस देन x2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 1 अपॉन सिग्मा रूट 2। ये तो पूरा वही का वही फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया था नॉर्मल के लिए। यू कैन सी ऑल्सो यहाँ पर वही फंक्शन है ना, तो वही का वही यहाँ पे आ जाएगा, इनटू dx हो जाएगा। तो मैंने एक इंटरवल में उसका डिफाइन किया, लेकिन फॉर एग्जांपल वो इंटरवल थोड़ा मुझे जो चाहिए वैसा नहीं है, मैं जो जानता हूँ डेटा उस हिसाब से नहीं है, तो मुझे ये x1 टू x2 को चेंज करना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। तो उसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया था, तो ये जो ऊपर है ना पावर में x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, उसको उन्होंने नया नेम दे दिया एंड से z, उसको कैपिटल z नॉट स्मॉल, क्योंकि हम कैपिटल x लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल z, उसको कैपिटल z बोल दिया। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा किया उन्होंने। तो ये जो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा है, वो आपका ये इंटरवल x1 टू x2 है, उसको चेंज करके दे देगा। तो अगर आप x1 से आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आपको एक z1 मिल जाएगा। अगर आप x2 रिप्लेस करेंगे तो x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो आपको z2 मिल जाएगा। तो अब x1 टू x2 है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऐसे चेंज हो गई, z1 लेस देन z लेस देन z2, उसमें आपको फाइंड करना है। क्लियर? ये मेथड पता चला इंटरवल चेंजिंग? एवरीबॉडी? सर एक बार रिपीट। यस सर। ओके, चलो रिपीट करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि x1 टू x2 जो है उसका डेटा उनके पास नहीं है, लेकिन उसको अगर वो इंटरवल चेंज करते हैं तो उनके पास वो डेटा अवेलेबल है। तो क्या किया उन्होंने चेंज करने के लिए? तो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ट्रांसफॉर्मेशन में ले लिया। और उनको ये आइडिया कहाँ से आया? तो मैंने यहाँ पे बोला कि पावर में जो था उसी को उन्होंने z बोल दिया। अब म्यू एंड सिग्मा तो आपके पास होंगे। अब आपको x1 एंड x2 को चेंज करना है, तो यहाँ पे x की जगह पे x1 रख दो, x की जगह पे x2 रख दो। तो जो फर्स्ट आएगा वो आपको z1 डिफाइन करके देगा, सेकंड आएगा वो z2 डिफाइन करके दे देगा। तो ये जो इंटरवल है वो चेंज होके आपका हो जाएगा z1 टू z2। नाउ इज इट ओके? यस सर। है ना? तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो वही जो मैंने समझाया वही का वही, देखो यहाँ पे x1 एंड x2 के लिए उन्होंने वही z1 एंड z2 सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो यहाँ पे z1 एंड z2 और यहाँ पे लिख दिया। यस, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम बेटा? प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? नो सर। ओके, तो इसी का यस 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 नो प्रॉब्लम सर। ओके, इसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी आपको म्यू दे दिया गया होगा, सिग्मा भी दे दिया गया होगा, और आपको x के लिए आपको फाइंड करने के लिए दिया गया होगा। तो जो x है उसको आपको किस में ट्रांसफर कर देना है? z में। अब आपके पास म्यू सिग्मा एंड z है, और म्यू सिग्मा एंड z की हेल्प से एंड ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल की हेल्प से, यहाँ पे दिख रहा है सबको टेबल? एवरीबॉडी कैन सी दिस? यस सर। तो ये जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी आपको मिलती जाएगी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही है। अगर ये आपने अच्छी तरीके से कर दिया कि म्यू सिग्मा आपके पास होगा, x टू z में अगर आपने अच्छी तरीके से कर दिया और फिर उसमें से आपके टेबल में क्या है वो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, देन यू कैन डू योर एग्जाम्पल वेरी वेल। यहाँ आपको दिख रहा था कि इंटीग्रेशन दिख रहा है यहाँ पे सबको?
एक्सपोनेंशियल में हमने ये इंटीग्रेशन करके हमने फाइंड किया था, आपको दिखा देता हूँ डेमो। यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था, यस, उसमें हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करते थे कि नहीं, और फिर उसका आंसर निकालते थे, यस सर। है ना। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवांटेज ये है कि आपको कहीं पर भी इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये टेबल को यूज करना है और ये टेबल आपको दिया जाएगा, है ना। और अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको मैं भेज दूंगा, है ना। तो उसी हिसाब से, या फिर आपको एग्जाम के टाइम पे दे दिया जाए तो उसी हिसाब से आपको इसको करना है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल, देखो तो आपको पता चलेगा क्या करना है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है इसके, देखो। The manufacturer knows from his experience that the resistance of the resistors produces is normal with mu is equal to 100 ohms and standard deviation sigma is equal to 2 ohms. What percentage of resistors will have resistance between 98 ohms and 102 ohms? मीन्स यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीज आइडेंटिफाई करना है। तो चलो बताओ मुझे, म्यू कितना है मेरा यहाँ पे? 100। चलो इसको भूल जाओ, नीचे में कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, चलो 100। ओके, वेरी गुड। अब स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा 2। अगर ये यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम कर दो, उसके बाद इसको लिखो। ओके, अब मेरा x1 कितना है मेरा? मुझे किसके बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? 98 98 एंड x2 102। ओके, तो मुझे जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे चाहिए 98 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 102 फाइंड करना है। यस और नो एवरीबॉडी? यस। अब यहाँ पे देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है कहीं पर भी आपको 98 या 102 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? नो सर। ओके, अब ये जो मुझे बताना था वो ये है कि आप जैसे ही z को इसमें ट्रांसफर करेंगे ना, तो आपका जो मीन है ना, वो मीन 0 की ओर जाएगा। मीन्स ये आपका जो कर्व है ना, वो यहाँ ये 0 की ओर म्यू आएगा, एंड जो सिग्मा है वो 1 की ओर जाएगा। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। जो आप इंटरवल चेंज कर रहे हो उसका एडवांटेज ऐसा है कि आपकी जो वैल्यूज है, बड़ी बड़ी वैल्यू, वो किस में आ जाएगी? 0 to 1, 0 to 2, 0 to 3, ऐसे सिंपल में आ जाएगी। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? मीन्स छोटी वैल्यू हो जाएगी अगर आप चेंज करते हो तो। और वो जो वैल्यू आएगी z की, वो ये टेबल के साथ आपको रिलेट करना है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखो z लिखा हुआ है, दिखा हुआ है z। Got it? यस सर। है ना। तो यहाँ पे Yes. हमारे एग्जांपल में देखते हैं, तो यहाँ पे देखो लिख दिया है म्यू इज इक्वल टू 100 ohms, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू 2 ohms. So let x be the random variable which denotes the resistance of the resistors. मीन्स जो रेजिस्टेंस डिनोट करता है रेजिस्टर का, तो उसको हमने रैंडम वेरिएबल x बोल दिया। अब मुझे z की फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। सो z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब मैं अगर कैपिटल X इज इक्वल टू 98 लेता हूँ तो मेरा z क्या हो जाएगा? x की जगह पे आपको 98, म्यू की जगह पे 100 एंड सिग्मा की जगह पे 2 रिप्लेस करना है। तो 98 माइनस 100/2, सो 2/2 है, और ये माइनस 2/2 होगा, सो -1 मिलेगा। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। When x is equal to 102, तो x की जगह पे 102 रिप्लेस करो। सो 102 माइनस 100 डिवाइड बाई 2, तो आपको दे देगा 2/2, सो इट गिव्स मी 1। तो ये मेरा जो बड़ा इंटरवल था वो अब छोटा हो गया। देखो दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। तो यहां तक किसी को डाउट है? एनीबडी प्लीज? डाउट है? इस ये एग्जांपल में कुछ है ही नहीं, इसलिए आपको बार बार पूछ रहा हूं कि अगर डाउट है या क्वेश्चन है तो डिस्कस विथ मी। बहुत ही सिंपल है ये, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो यहां तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? एवरीबडी? नो डाउट सर। नो डाउट सर।
ओके, थैंक यू। अब यहाँ पे देखो, ये जो है वो आई डिसाइड दिस इज माई -1, चलो मैं इसको -1 बोल रहा हूँ, ओके, और इसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 1। तो दोनों साइड पे सिमेट्रिक है, वो तो हमको प्रॉपर्टी में ही बोला है, यस और नो? यस सर। है ना? तो अब ये -1 to 1 को मुझे दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो बीच में कौन सा वैल्यू ले सकता हूँ? 0. 0, तो ये मेरा 0 है, ओके। अब -1 to 1 के बीच में मेरा 0 है, तो इसको मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, -1 to 0 एंड 0 to 1। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1। तो ये स्टेप में किसी को डाउट? एनीबडी? नो डाउट सर। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू हमारे पास है लेकिन इसकी नहीं है। कैसे नहीं है मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखो, टेबल में कहीं पर भी नेगेटिव वैल्यू के लिए कुछ लिखा है, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, है कहीं पर भी नेगेटिव -1, -0 मीन्स -1.2, या कहीं पर भी माइनस वैल्यू के लिए टेबल है? No, sir. No, sir. उन्होंने ऑलवेज पॉजिटिव जेड लिया है, देखो यहाँ फिगर में ही दिख रहा है 0 to z, मीन्स उन्होंने पॉजिटिव साइड ही यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये टेबल जो है उन्होंने पॉजिटिव साइड कंसीडर करके ही प्रिपेयर किया है। अगर कोई ये कर्व या फिर ये जो सेंटर है वो चेंज कर दे तो अकॉर्डिंगली टेबल भी चेंज होगा, इसलिए आपको जो भी टेबल दिया जाएगा वो आपको फॉलो करना है। अगर एग्जाम में टेबल नहीं दिया गया है तो मैं जो शेयर करूंगा उससे आपको एग्जाम्पल करना है, और एग्जाम में अगर टेबल देते हैं तो टेबल जो टेबल दिया है उसी हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव साइड पे जो इंटरवल बैठा है उसको मुझे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो यू कैन सी हियर -1 to 0 एंड 0 to 1 दोनों सिमेट्रिक है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। तो मैं दोनों को सेम है ऐसा बोल सकता हूँ कि नहीं? Yes. तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1, क्योंकि ये दोनों सेम ही होंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंज नहीं है, और यहाँ पे हमने कौन सी चीज यूज की, बाय सिमेट्री, मीन सिमेट्री के थ्रू में ये हमने लिखा कि दिस इक्वल टू दिस। ओके एवरीबॉडी, ये स्टेप में कोई डाउट? No, sir. नो Okay. डाउट। अब यहाँ पे देखो, दोनों एक्सप्रेशन सेम ही है, तो मैं 2 टाइम्स कर दूं तो चलेगा? Yes, sir. तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1 हो गया। अब इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे देखना, ओके एवरीबॉडी लुक एट हियर। अब 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 0 एंड 1 आप कॉन्सेंट्रेट करो, और यही आपको टेबल में देखना है। तो यहाँ पे हमारा 0 कहाँ पे है, ये रहा 0, यहाँ पर भी 0 है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो 1 नहीं, तो हमको यहाँ पे वर्टिकल जाना पड़ेगा। तो 0 और यहाँ पे 1 कहाँ पे, ये, तो दोनों का सेम आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, तो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स क्या होगा यहाँ पे, P ऑफ 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, कितना दिख रहा है आपको? 0.3413। Yes, 0.3413. So that is your value. Replace here from this table. So 0.3413 दोनों का प्रोडक्ट करो, that is 0.6826. but इसको आपको बोला गया है परसेंटेज, what percentage, okay? तो परसेंटेज के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो hence the percentage of resistors have resistance between 98 ohms and 102 ohms is 68.26%. So is there any doubt, any question in this example? Anybody? नो डाउट सर। नो सर। और यहाँ कहीं पर भी आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज द बिग थिंग फॉर यू, है ना? क्योंकि अगर इंटीग्रेशन करना पड़ता तो वो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता। देखो आप इंटीग्रेशन की फॉर्मूला देखो,
e रेज टू -1/2x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो यहीं पे आपका बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाती और उसका इंटीग्रेशन थोड़ा आपके लिए हार्ड हो जाता। ओके, तो उन्होंने वो इंटीग्रेशन करके ही ये टेबल डिराइव किया है, और तो हम सीधा ये टेबल को ही यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना फर्स्ट एग्जांपल में? एवरीबॉडी? No doubt, sir. व्हाट अबाउट अदर्स? नो डाउट सर। ओके, No doubt, sir. चलो स्टेटमेंट पढ़ो, तब तक मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो स्टेटमेंट पढ़ो एवरीबॉडी। चलो कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे सबको? कोई सुनाओ यार, एक बार तो आप बोलो। चल मैं ही पढ़ लेता हूं। द एवरेज सीजनल रेनफॉल इन अ प्लेस इज 16 इंचेस विथ एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4 इंचेस। तो यहाँ पे आपको म्यू नहीं दिया है डायरेक्टली, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो एवरेज मीन्स क्या होता है? Mean. मीन। ओके, तो आपका जो मीन है मीन्स म्यू जो है वो आपका 16 है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन जो सिग्मा है वो आपका 4 है, दोनों का यूनिट सेम है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रेनफॉल इन दैट प्लेस विल बी बिटवीन 20 इंचेस टू 24 इंचेस। तो ये मेरा हुआ x1, ये हुआ मेरा x2। तो ये x1 टू x2 मीन्स 20 से 24 इंचेस अगर एक साल में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो मुझे यहाँ पे फाइंड करके देना है। तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज मिल गया, म्यू, सिग्मा एंड एक्स। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट x बी द रैंडम वेरिएबल विच डिनोट्स द सीजनल रेनफॉल इन अ ईयर। मींस जो हमको चाहिए सीजनल रेनफॉल उसको हमने रैंडम वेरिएबल में ले लिया। सो म्यू इज इक्वल टू 16, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 4। तो z इज इक्वल टू, ये तो मेरी फॉर्मूला है ट्रांसफर करने के लिए, सो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब मेरा x1 जो है वो 20 है, सो मेरा z क्या हो जाएगा? 20 माइनस 16। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, x माइनस 16 बाई 4। सो x की जगह पर 20, सो 20 माइनस 16 बाई 4। सो आई हैव माइनस यस 4 बाई 4, पॉजिटिव 4 बाई 4 होगा। सो वी हैव दी 1 and when x is equal to 24, so z is equal to 24 minus 16 by 4, so we have the 2. yes or no everybody? ये z1 and z2 तो पता चल गया सबको? Yes, sir. ओके, अब जो फाइंड करने के लिए बोला गया है तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 लेस देन x लेस देन 24 इक्वल टू, अब मैं इसी एक्सप्रेशन को z में लिखना चाहता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो सर। नहीं सर। No. यहाँ पे इंटरवल देखो, यहाँ पे इंटरवल को फोकस करते हैं। ये जो आप बचपन में करते थे ना वही करना है, लेकिन थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखो 1 to 2, तो मैं इसको अगर 1 बोल रहा हूँ, इसको 2 बोल रहा हूँ, तो मुझे इसके बीच की मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यस और नो एवरीबॉडी? एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे देखो, हाँ किसी को डाउट होगा कि सर 1 to 2 सीधा टेबल से रख दे तो इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि 1 to 2 तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, तो टेबल में स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। तो ये टेबल में आपको वैल्यू फाइंड करना है तो किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा? 1 to 2 को 0 से। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना? तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू 0 ही होना चाहिए, है ना, तब जाके मैं इसको यूज कर सकता हूँ ये पूरे टेबल को। तो यहाँ पे मुझे 0 में ले जाने के लिए मैं यहाँ पे जो बचपन में हम करते थे वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मेरा 1 2 है, ओके, तो अब ये मेरा 0 है। तो मुझे क्या करना है?
0 to 2 जो है वो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि नहीं? इज इट पॉसिबल टू फाइंड दिस 0 to 2? Yes, sir. हाँ, अब 1 to 2 मुझे निकालना है, दिस इज माई रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसके लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा? इसको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं टोटल में से? Yes, sir. तब जाके मेरा 1 2 मिलेगा ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. है ना? तो Yes, यहाँ sir. पे वही किया है, जो 1 to 2 मुझे फाइंड करना है, तो देखो मैंने 0 to 2 लिया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 1 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 2। यही स्टेप इंपॉर्टेंट है, अगर ये अच्छी तरीके से आपने कर दिया तो सिर्फ ये तो सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। 0 to 2 मीन्स आपके टेबल में 0 and 2, तो ये आपका वैल्यू हो गया 0 to 2 का कितना है? 0.4772. 4772, वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, माइनस 0 to 1, तो 0 to 1 मीन्स 0 to 1, यस 0.3413, ये दोनों ही दोनों आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन कर दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0.1359, that is the probability that the rainfall in that place will be between 20 inches and 24 inches in a year. So do you understand everybody? Yes, sir. Okay. Yes, sir. अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आगे वाले एग्जाम्पल में हमने किया था कि 0 to 1 था, अब यहाँ पे आपको ऐसा भी कभी कभी दिया गया होगा 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.09, तो उस टाइम पे आप कौन सी वैल्यू देखेंगे? तो यहाँ पे देखना टेबल में सब लोग कौन सी वैल्यू देख सकते हैं? 0 to 1 नहीं ले सकते ना आप? No, sir. हाँ, एक मिनट है, यहाँ मेरा स्क्रीन पे वो आ गया है, इसको रिमूव होने देना पड़ेगा। ओके, यस, हाँ, अब दिख रहा है सबको? तो मुझे यहाँ पे 0 लेस और इक्वल टू z लेस और इक्वल टू 1.09 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो आपके पास 0 है, 1.09, अब मुझे 1.09 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1.0 प्लस 0.09, तब जाके वो 1.09 होगा। यस और नो एवरीबॉडी? Yes, sir. तो ये 1 तो है, आप 1 तक पहुंच गए हो, अब उसमें 0.9, तो यहाँ पे ऊपर देखो 0.01 0.02 करके 0.09, तो यहाँ से आपको लेके दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू, ऐसा हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे उसका आंसर आपको लिखना है 0.3621। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? Yes, sir. किसी को डाउट है एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल में? एनीबॉडी? No doubt, sir. Okay, so this is about the our normal distribution. So is there any doubt, any question in today's session? Anybody? No doubt, sir. I want confirmation from most of the students. Please confirm yourself quickly. No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. Okay, so